See, last we were seeing these questions. I stuck here. I found there is no option. But question when I saw, they asked f dash x. This is my f of x. Okay, this is my f of x. So next what I have to do, I have to find f dash x. इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, माइनस तो बाहर ले लेंगे, तो एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, यू भी रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन रिलेटेड एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, you first function into differentiation of second function plus the second function is cos x, differentiation of x is 1. So okay, next this one sin x, differentiation is this is sin x differentiation is cos x. Okay, so plus cos x. So once again let's say see it. First function is minus, oh sorry, minus out only for here, only for here, minus is this negative sign is out only for this one, not for this. So when we will simplify this is out only, this cos x is another term, next term. Now when you simplify, this will become minus minus here plus, so no need to write, so directly it is x sin x, then here minus and plus cos x, it will become minus cos x, then here plus cos x plus cos x. So this minus cos x and this cos x will get cancelled out, so remaining is only x sin x. Electricity is not there, therefore I am using torch and I am taking the class. Outside it is raining also. Okay, fine. Next we will move to some properties of definite integrals. So we will see here some properties of definite integrals. This is a very important topic for IIT, all competitive exams, and as well as for CBSE also. So see, first see the first property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कुछ भी हो, इंटीग्रल उसका इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी सेम, ठीक है। विल सी एग्जांपल ऑफ दिस, डोंट वरी, फर्स्ट लर्न द प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस प्रॉपर्टी. सी सेकेंड वन, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, यहाँ ए टू बी है, अगर इसी को रिवर्स कर दें, अगर बी टू ए कर दे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? सी हियर, इंटीग्रल ए टू बी, लिमिट इज ए टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स
प्लस ए टू सी हुआ, फिर सी से स्टार्ट होगा, सी टू बी, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू बी के बीच में अगर कहीं पे कर्व डिसकंटिन्यू हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, कहीं पे अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, तो एट दैट प्लेस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, सपोज सी पे जीरो हो रहा है, तो इसलिए हमने ए टू सी फिर से सी टू बी की ओर हम ले गए, ठीक। इट इज समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी। Suppose the same function is here. This is A, this is B. Suppose it is C. That is why A to C and C to B. Okay. Wait a second. Okay. So we will see next property. Property 4. Zero to A f of x dx. 0 to A f of x dx. Okay. Is equal to same here 0 to A, but we can change here, that is f of, add these to A plus 0, that is A only, so A minus x dx. Okay, sorry, this is third, this is fifth property, this is a fifth property. Before this there is one property, fourth, that is here A to B f of x dx is equal to same A to B f of their sum, that is A plus B minus x dx. ठीक है, this was fourth property. Okay, so based on this fourth property, this fifth property is there. Okay, okay, next sixth property. Sixth property will be limit from 0 to 2a. Then it is like this. This will be f of x dx is equal to, this will be expanded in the two form, that is here you write 0 to a f of x dx. Once again 0 to a, but here f of 2a minus x dx. Okay, see it. If the limit is 0 to 2a f of x dx, this can be expanded in this two part. Now, if this will give, if this will become f of x, if this will give f of x, then their sum will be what? Then this resultant will be twice of 0 to a f of x dx. Understood? अगर ये f of x हो जाता है तो दोनों का सम हम कर सकते हैं, मतलब
ये अगर इवन हमें दे दे, इवन फंक्शन दे दे, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फिर से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इधर प्लस एफ ऑफ एक्स है, लिमिट सेम है, इधर माइनस एफ ऑफ एक्स है, लिमिट सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका तो सो व्हाट विल सी, इसका मेन प्रॉपर्टी ये हुआ, एंड उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके दो प्रॉपर्टीज आएंगे, फर्स्ट हियर, सेकेंड दिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये होगा, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए ऑड फंक्शन, तो ये जीरो होगा। So see, last we saw that if limit is 0 to 2a f of x dx, then it is 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x, f of 2a minus x dx, okay। नाउ अगर जब ये नेगेटिव मिल जाए हमें, ठीक है, देन दिस विल बी जीरो, और अगर ये पॉजिटिव मिल जाए हमें, देन दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 की ओर चलते हैं हम। इट इज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। ये सेम है, जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उस पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। माइनस ए टू ए, सीधा इफ यू विल सी, हम इसे क्या करते हैं, माइनस ए टू ए, इस टाइप का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो हमने ऐसा, इफ यू सी प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या किया था हमने, दोनों को ऐड किया था लिमिट्स को, ओके। but that you should not do here, that is only from if the limit is different, here limits are same, only sign is different, okay। so this will be twice of 0 to a f of x dx when f is even, जब ये इवन होगा तब, और अगर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। सो इसके दो रिजल्ट होंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ओके। because this is again expanded as 0 to a। अब ऐसा क्यों होता है ये देखो, 0 to a f of x dx plus 0 to a f of x dx, okay। here one in one we have to check है, अगर ये भी इवन फंक्शन है तो दोनों का सम ये मिलेगा, अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड, यू ऑलरेडी नो। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पता करना है, ये दिस वन आल्सो एक्सप्लेन्ड सो मेनी टाइम्स, बट वंस अगेन सी, कोई भी फंक्शन दिया हुआ, सपोज y इक्वल टू साइन एक्स इज गिवन, ओके।
तो हमें इवन और ऑड कैसे चेक करना है? फर्स्ट एक्स की जगह पे हम माइनस रखेंगे, माइनस एक्स, सो साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? हमें सेम, अगर सेम मिल जाए, माइनस एक्स रखने पे अगर सेम मिल जाए तो इसे बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। बट हियर इट इज नॉट सेम, सो दिस विल बी ऑड फंक्शन, इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है ये, ओके। तो दिस इज ऑड फंक्शन। एक इवन फंक्शन का देखते हैं, इफ y इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये भी क्या होगा? इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हम कब चेक करेंगे, ऑड और इवन? ये हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी 7 में, मीन्स माइनस ए टू ए टाइप का जब हो। लेकिन सेम टाइप का क्या है, 0 टू ए वाला जो है, सी हियर 0 टू ए वाला जो है, नो सी लेट इट बी स्टेबल, 0 टू 2a वाला जो है, इसे हम 2a माइनस एक्स से डाल करके देखेंगे फंक्शन में, क्या फिर से वो एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा दे रहा है तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ये हो गया प्रॉपर्टी की बात। The first property you have to remember all these 7 property, okay, so that is what first you have to do. Now based on this we can see some of the questions. Proof is given in your NCERT book. First easier problem we will see, okay, and slowly we will go to the difficult problem. See, this is a question I have taken from NCERT example. This is question number 31. This was also not recorded. लिमिट इज माइनस पाई बाई 4 टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 है, तो हमें सोचना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी था ना, माइनस ए टू ए वाला, वो प्रॉपर्टी देखना है। वो प्रॉपर्टी में क्या देखना है, ऑड और इवन देखना है हमें। तो साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर है, तो ये इवन फंक्शन ही हुआ ना, इवन फंक्शन, तब तो ये ट्वाइस होगा 0 टू ए, लिमिट 0 टू ए, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू ए देन द फंक्शन। अब साइन स्क्वायर इसका डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, यू हैव टू ब्रेक दिस इनटू 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सिंपल दिस टू ब्रिंग इट आउटसाइड, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन एक्स है, साइन टू एक्स का, सॉरी कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स है, और ये 2 इसका डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ना पुट द लिमिट पाई बाई 4 देन 0, पाई बाई 4 पुट किए तो ये आया, 0 पुट किए तो 0 माइनस 0 बाई 2 आया। ना साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, सो 1 बाई 2, सो ओवरऑल द आंसर इज पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। We will see question number 33. This is here see integration of minus 1 to 1 sine 5x cos to the power 4x dx. I told you not to solve immediately. First, check whether it is odd or even function. Why you have to check? Because see the limit here. This is minus 1 to 1 means
सेवन्थ प्रॉपर्टी जिसमें कि माइनस ए से ए था, उसमें हमें चेक करना था ऑड है या इवन है। तो चेक करते हैं। तो पहले फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है साइन 5x कॉस 4x, ठीक है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन 5 माइनस एक्स कॉस 4 माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस साइन 5x कॉस 4x, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माइनस एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव आ गया ये, नेगेटिव आ गया तो ऑड आ गया। सो डायरेक्टली इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली 0, ओके। सी डायरेक्टली इट्स आंसर इज 0, okay. Since electricity is not there, that is why some blur problem I am facing. It sometimes is getting blur. Please adjust with my voice and some of written things. It is very difficult here. Climate is also like that. No, it is non-stop rain. Okay. So accept mod type questions, modulus type questions. For the timing means for today, try to solve all the examples except modulus type questions. Modulus type questions I will take on Monday. Okay. So except modulus type questions, please solve all the examples first. Don't go to exercise. I will give you enough time. We are moving. We are not lagging in the syllabus. We are moving fast. Okay. If you can, you can. But I'm not forcing you to complete the exercise as soon as possible. Learn. Okay. Except modulus questions, you can solve all the examples compulsory. I'm asking you to solve the example first. So if you see your textbook, then there are 1 2 3 4 5 6 questions are there without modulus, and only one question is there modulus type. Okay, I too don't have a textbook, but I'm seeing in PDF form. Okay, if any doubt, please WhatsApp me, comment me. Only few people are asking doubt, that is sometimes Tushar Patil, Rishikesh, Sai, they are only asking. Others are solving. I don't know whether they are copying from some online solutions or whatever it is. If you are copying also, please understand and then copy. Okay. If you don't have doubt, in really if you don't have any doubt, then it's awesome. Okay, thank you very much. Except question number 30, except example 30, please try to solve all other examples. Okay.